हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस फ्राइडे के सत्संग में। वी हैव डिसकंटिन्यूड आवर भगवत गीता फॉर फ्यू वीक्स बिकॉज मेनी ऑफ देम आर ट्रैवलिंग। वी स्टार्टेड विद कृष्ण कथा। यू नो, द बर्थ ऑफ कृष्णा, the that katha we will take up during the time of Janmashtami, because that is apt time for that. So we thought, we will study the Leelas and what lessons can we learn from the Leelas. So last time we took up Putana, right? And we noted about 13 lessons from that story. Okay. So we learned that how 13 lessons we can take home from that and apply in our lives. So similarly, today we'll take up one more Leela, which is next to that. So this Shakatasur Leela. So Shakatasur Leela. Shakatasur Leela. So it is Srimad Bhagavatam. That's the reason. What did I do is, I have shared the class. I have shared it in the group, the shloka, so that everyone can read that. Srimad Bhagavatam. I nikala tha 10.7 or 10.7. Okay, so we'll take up this Leela. So Shakatasur, 7th chapter is related Shakatasur. We'll come with what did we learn in the last class. So just repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtake Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Vindaya Namo Nama Vindaya Namo Nama Vindaya Namo Namaha. Sri Raja Uvacha Yena Yena Avatarena Bhagavan Haririshwara Karoti Karnaramyani Manojnani Chana Prabho Yena Yena Avatarena Bhagavan Haririshwara Karoti Karnaramyani Manojnani Chana Prabho. रिपीट कर लीजिए दूसरा श्लोक अलग ट्यून में. श्रीराज उवाच श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो. श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो. माताजी
श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। हरे कृष्ण। दूसरा श्लोक लेते हैं। ट्यून जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम अनुष्टुप छंद और ये अलग अलग रहते हैं, तो अनुष्टुप छंद का हमने अभी फर्स्ट लाइन विच वाज इन अनुष्टुप छंद वी सिंग इन डिफरेंट वे एंड नाउ इट इज अ डिफरेंट ट्यून। तो यशृण्वत, हाँ, यू वांट टू टेक चिल्ड्रन, पापा के पास आके पढ़ना है। हाँ या बच्चों के बिना अधूरा रहता है। मुरारी कृष्णा आल्सो कैन रीड, यस। श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। या कृष्ण मुरारी। श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। हरि बोल। I'll take the second one. यच्छृण्वतोपैत्यरिदिवितृष्णा यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्या अचिरेण पुंस भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यात् अचिरेण पुंस भक्तिर्हरो तत्पुरुषै च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। Yes. यच्छृण्वतोपैत्यवितृष्णा यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्धम् अचिरेण पुंसः सत्वं च शुद्ध्यम् अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरैतत् पुरुषै च सख्यम् भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यम् तदैव हारं वद मन्यसे चेत्। तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। माता जी कोई लेगी? या यच्छृण्वतो वैद्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत् अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। और कोई लेगा? Anyone? You want to take, children? No. हरि बोल। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा
Sattvam cha shuddhyat achirena pumsa. Bhaktir harotat purushe cha sakhyam. Tadeva haram padamanyase chet. Yachunvatopaitya vitrishna. Sattvam cha shuddhyat achirena pumsa. Bhaktir harotat purushe cha sakhyam. Tadeva haram padamanyase chet. Hare Krishna. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Repeat after me. King Parikshit said, my Lord Shukdev Goswami, all the various activities exhibited by the incarnation of the Supreme Personality of Godhead are certainly pleasing to the ear and to the mind. Simply by one's hearing of these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish. Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord. But Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind and ear. Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanishes, and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord, attachment for Him, and friendship with devotees who give us the contribution of Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about those activities of the Lord. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Stavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitam Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarurubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So the saying is like, Hari Ananta, Hari Katha Ananta, right? This is the line generally. Hari is Anant. It's unlimited. His potencies are unlimited. His leelas are unlimited. His forms are unlimited. So there's no limit
So he's limitless, they're unlimited when we say Hari Anant, and Hari Katha is also Ananta. So Ananta in the plural form. So if Hari is taken once, he has come to this material world once, Srujan when we call, he does so many pastimes. And all those pastimes are Ananta, means like many. He comes once, but he does many pastimes. Like Krishna alone you can take. He had come once, okay, just 5,000 years back. And he had done so many leelas, and he left a example for us, those lessons behind those leelas. Shubhangi, pani dena na. So, Bhagwan, Hari Anant, Hari Katha Ananta. So, Anant is name of course, Lord, but also Ananta Shesh also exists, right? Balramji. And Balram Purnima is going to come very soon. Okay, so we will be celebrating Balram Purnima also, but it's in the weekday. Of course, that's the day we have to take it on that day. So, Ananta Shesh in his form, everybody knows where does Ananta Shesh stay? Ananta Shesh in his form is in the bottom of the Brahmanda, the lowest, the lowest portion of the Brahmanda is like an egg. Brahmand means it's egg. Brahma ka and. So egg hai. Us egg ke sabse lower wale portion mein Ananta Shesh is staying, and along with 4 Kumaras. Okay, and he is continuously glorifying the Supreme Lord from ages, millenniums. And he has not completed that glorification even till today. That's what Shastra says. He is continuously glorifying. So Hari Ananta, Hari Katha Ananta. And from that Anant Sagar, we are taking a drop and listening. So we are just hearing one Katha today. Okay. And we are trying to hear, means trying to gain some knowledge out of that Katha. So, out of एक समुद्र की इतनी बूंदों में से कुछ एक बूंद हम चखने का प्रयास कर रहे हैं. So we are trying to relish that one drop of, we call it a booнд is called a drop, right? One drop we are trying to relish and trying to learn lessons from that. So it's a big thing. So Hari has done so many leelas. So within that, last we took up Putana Moksham. So Putana, as we said, was not killed, rather she was, she was she was lifted. Okay, she was given the position of mother in the Vaikuntha. So it was in fact moksham. She was provided moksham instead of getting killed. So we learned some lessons, right? You remember something you have written also. I haven't written. You have written it or you didn't bring? Okay, जिसको याद है बोलिए. पूतना कथा से क्या क्या याद है किसको? Sir, Supreme Lord, where available, all demons cannot stay. All the demons cannot stay. Because when Parikshit Maharaj was really worried when Khechari entered the Gokul, he was really worried. What will happen now? So then Parikshit Maharaj said, Sukdev Goswami said to Parikshit Maharaj, don't worry about it. Wherever there is worship of the Supreme Lord, or wherever the Supreme Lord is present, the other Shaktis, which we call as Pishach Shakti, Bhut Shakti, those things will not come into their houses. Okay, even if they come, they will not be able to stay longer in that houses. Correct. Vidya cannot stand in front of a Vidya. Vidya, yes, because Putana represented Avidya and Krishna was full of Vidya. So naturally she cannot stand. Or we are the आप भी याद है बोलो प्रभु. प्रभु तो लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं. आपको जो याद है वो बोलो. ना या जो है बोलो, ऐसा कुछ नहीं है. रिकलेक्ट होता है. The thing is that when Khechari came, so Krishna closed his eyes. So yes. Lot of lessons on this, that if you don't want to mingle or to make a friendship with them, you will take away yourself from him. Yes. So in this way, you will not connect with the wrong other person. Yeah, because eyes is the first medium through which we connect. Yes. And मतलब वही बात है, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ विकार नहीं होगा. दोनों एक साथ नहीं रह सकते. और the third लोग यानी concept ये भी है कि he is a
lady or they so Krishna don't want to kill any Female, lady. yes. Some First बड़ा से opening bats. 5-6 लोगों को हम मारते थे, लाइक बच्चों को, बूढ़ों को, Yes. औरतों को, ब्राह्मण को और गाय को. Guy, yes. These 5 things have to be protected So, in any sense. might Krishna have think this in this mind, so he don't want to kill, so he want to close his eyes. So Thinking that she will go away. Yes, She- that was also one of the reason which we Acharyas gave. Yes, कि भाई इन 5 चीजों की, इन 5 लोगों की हरदम रक्षा करनी चाहिए, और मैं ये मेरे सामने आई है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो सोचेगी मैं सो रहा हूँ, ऐसा सोच के वो चली जाएगी. One was that reason. और बताए थे सर प्रभु जी, वो जो उसको क्यों मदर का ये दिया, हाँ. तो जब दो चीज के लिए सेम टाइम पहले कृष्णा भगवान को जब देखा, वो सोचा मैं और किस अवतार में देखा? वामन अवतार में. यस, वामन अवतार. वामन अवतार में वो सोचा पहले वो मेरा बेटा होगा तो अच्छा होगा. हाँ, और कौन थी वो? उसका नाम क्या था उस समय? पूतना का पहले के जमाने में रत्नमाला. रत्नमाला. आगे आ जाइए, कोई बात नहीं. रत्नमाला नाम था. तो रत्नमाला ने सोचा कि ये मेरा पुत्र हो जाए तो अच्छा रहेगा. अच्छा रहेगा. ओके. उसके बाद फिर चेंज हो गया माइंड. हाँ. राजा बलि से पूरी धरती वर्ती सबकी पाताल में भेज हाँ. तो उसको गुस्सा आया कि ये इसको दिखा दूं मैं. हाँ, दोनों की दिखा तो दी. दोनों चीजें साथ में आ गई. तो भगवान ने उसकी ये विश इस युग में पूरी की, दोनों का, कि उसको उनसे उससे स्तनपान भी लिया और ऊपर से उसको मोक्ष भी दे दिया. उसकी मदर भी बना के उसको धात्री के रूप में आई थी वो, तो उसको वहां पे स्वर्ग लोक में भी उसको जगह दे दी. और तो बता हुआ था हमारा जो तिलक और ये कंठी. इम्पोर्टेंस क्या है. यस. जब आप लगाता है तिलक हाँ. और कंठी, वो पूतना ये लगा के आई थी. यस. सपोज वी आर पुटिंग दैट, देन जमलोक कैन नॉट एंटर, इवन तो कोई भी टाइम में हम मर गया. हाँ, फिर भी तो यमदूत के जुरिस्डिक्शन से हम बाहर रहते हैं. ओके, तो विष्णु दूत के जुरिस्डिक्शन में होते हैं. इसलिए कंठी और तिलक का इंपॉर्टेंस समझे थे हम लोग, कि क्यों कंठी पहनना चाहिए और क्यों तिलक लगाना चाहिए. क्योंकि रीजन क्या है कि कृष्ण ने देखा भाई उसको क्यों उद्धार दिया, तो ये भाई एक तो वो कंठी लगा के आई थी और तिलक पहन के भी आई थी. बिकॉज शी वोर बोथ दिस मार्क्स एंड दीज आर विष्णु's चिन्ह, दैट इज विष्णु's फुट. एक्चुअली उनके विष्णु के पैर है, और गले में कंठी तुलसी कृष्ण को बड़ी प्रिय है. क्योंकि रामायण का प्रसंग भी हमने समझा था कि जब लंका में रावण के वहां पहुंचा तो हनुमान जी ने देखा कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा. क्योंकि तुलसी के पौधे को देखकर उनको याद है कि यहाँ कोई सज्जन रहता है, तो ये तुलसी बड़ी प्योर चीज है, तो समझ गया ये कोई प्योर सोल यहाँ पर है. तो कंठी और तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो पहन के आई थी. तो बोले चलो ठीक है, इसको भी मैं उसका उद्धार करता हूँ. चलो ठीक है. अब ये चूंकि चल के, तो भगवान के पास हमें चल के जाना होता है, और वो चल के आई थी. चल के आई थी, है ना, चल के. क्योंकि ठीक है उड़ के आ रही थी, लेकिन गोकुल में तो वो चल के आई थी. सो भगवान के घर इसीलिए हमें चल के जाना चाहिए. वी हैव टू गो टू द लॉर्ड्स हाउस वॉकिंग, एंड दीज symbols protect us. When we are already protected. When we have a tilaka and when we have the kanti mala, we are protected from the maya. Okay, and also from Yamraj has passed the resolution in the 5th canto that if you go and try to take this, collect this, if you go to the soul and if you see there is a kanti mala and tilak, you just return, because that is not our jurisdiction. We cannot take up that soul. Okay. और भी कुछ याद है? और प्रभु जी ये कृष्ण शंकर भगवान का जो हाँ, poison Putana came with a Kalkut wish smeared on her body. So Kalkut wish. So then he closed his eyes, thinking that I eat only milk and curds, and he was meditating on Shiva. Shiva, your best food has come, because you are interested in, your favorite food has come, because he drinks a poison, like when he could drink halahal poison during the Samudra Manthan Leela. So तुम्हारे favorite food आया है, इसलिए तुमको याद कर रहा हूँ. ठीक है, अब तुम नहीं आते हो तो मुझे पीना पड़ेगा, पर ये मेरा फूड नहीं है. मेरा फूड तो दूध और दही और मक्खन, ये सब चीजें. और एक क्या था रीजन? हाँ जी, ये हमारा वैदिक कल्चर हिसाब से हम गाय को वो आज भी आएगा. हरे कृष्ण, वो आज भी आएगा. गायों को रक्षा, और गायों के हर चीज को, गौमूत्र, गोबर, वो सब छिड़कती है माता यशोदा, तो प्यूरिफिकेशन के लिए. तो आज भी घर प्यूरिफाई करने के लिए. हाँ, 7 मदर्स का भी डिस्कशन हुआ, उसमें ये नर्स का बात हुआ था. यस, हरि बोल.
सो पूतना मोक्ष हर कोई ने समझ लिया, नहीं समझा तो मेरा वीडियो देख लेना बाद में। हरि बोल। उतना कर सकते हैं। तो पूतना मोक्ष कब हुआ था? जब भगवान, हाउ मेनी डेज कृष्णा वाज? Just 6 days old. Just 6 days old. That time he had done the Putana moksha. And क्यों भगवान करते हैं लीला? लोग खुश हो, है ना? भगवान स्वयं भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को प्रसन्न करते हैं. Means like he gives his devotees the chance to relish, and he also relishes. So and सुनने से क्या होता है? आज के श्लोक में आ रहा है कि हमें हृदय में और मन में वो सारे निकल जाते हैं ना. तो कथा सुनने मात्र से हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है. जस्ट बाय लिसनिंग टू हरि कथा वी गेट आवरसेल्व्स प्योर्ड, है ना. सो दैट इज द फर्स्ट लेसन आउट ऑफ टुडे श्लोक, यू नो, लाइक just by listening to Hari Katha. So we think sometimes, why do we have to listen to Putana? What has she done? What is the Shaktasur? So, you know, we sometimes think, why do we have to listen to these stories? So Hari अनंत है, हरि की कथा अनंत है, उसमें से एक बूंद हम चख रहे हैं. Just not, that's what we just know. So उस एक बूंद में से यदि हम सुनते हैं, so then that itself will give purity to our heart as well as provides लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस टू अस, है ना. सो जब कोई कथा सुन के आता है तो बहुत खुश रहता है. तो इसी बात को महाराज परीक्षित आज के श्लोकों में, जो शुरुआत की ओपनिंग श्लोक हमने पढ़े थे, उसके अंदर कह रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं कि सुखदेव के साथ, ऑल वेरियस एक्टिविटीज एग्जिबिटेड बाय द इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड आर सर्टेनली प्लीजिंग टू द ईयर एंड माइंड. येनावतारेण, येन केन प्रकारेण हम बोलते हैं ना. तो येनावतारेण बोल, तो ये या और कोई भी अवतार जो भगवान लेते हैं, भगवान हरि ईश्वर है. बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान हरि ईश्वर है. कोई ऑर्डिनरी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं. भगवान हरि ईश्वर है ना. 3 चीजों की बात कर रहे हैं और तीनों चीजों का हमने डिटेल में समझा है. भगवान का मतलब समझते हो क्या है? 6 opulences, है ना. और 6 opulences भी पता है सबको, क्योंकि सेकंड श्लोक में हमने बहुत डिटेल में समझा था. सबसे ये ओके, सबसे पहले ये ले लेते हैं. हाँ, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा यश, वो जो भी कार्य करते हैं यश होता है उनका. हाँ, वैराग्य, ओके, ज्ञान, फिर पावर. हाँ, और वो क्या, वो गोवर्धन उठाया था. और हाँ 6 वाला नेम फेम, ओके, नेम, ओके, वो यश हो गया ना. सेम ही हो गया, नेम फेम एक ही हो गया. नेम फेम सुंदर था, उसके ऐसा सुंदर कोई नहीं है कृष्ण की तरह. ब्यूटीफुल, राइट. सो भगवान, तो भगवान जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य को वहन करते हैं, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को वहन करते हैं. हरि का क्या मतलब? जो हरण करते हैं, आपके सारे दुखों का हरण करते हैं. चिंता मणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, उनके पास इतने मणि है कि आपके हर एक दुखों को हरण कर लेते हैं. चिंतामणि लगे हुए उनके धाम में. हाँ, तो कृष्ण हर एक आपके दुख को हर ले सकते हैं, भक्तों के दुख को या उनकी बाधा को हर ले सकते हैं. हरि ईश्वर, हरि ईश्वर, बिकॉज ही डिड नॉट से इन प्लूरल, हरि ईश्वर. सो ईश्वर मीन्स, ईश्वर का क्या मीनिंग होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ईश्वर? कंट्रोलर, राइट. और हरि ईश्वर, ईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर. सो सुप्रीम कंट्रोलर ये नावतारेण, किसी भी अवतार में हरि ईश्वर जब कोई भी अवतार लेते हैं एंड ही डज लीला, करोति कर्ण रम्याणी, कानों को, करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभो. तो वे कर्ण को प्रिय लगे. व्हाट इज यू नो लिसनिंग, what is very good for listening, you know, like, or what is very not good, we can't say, pleasing to the ears. Yeah, what is very pleasing, that karna ramyani, जो कान को आनंद देती है. ऐसी कथा कोई है, मीन्स लाइक ऐसी कथा हरि जो करते रहते हैं, बड़ी आनंद को, कानों को आनंद प्रदान करने वाली होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दी प्लीजिंग टू द इयर्स, इट इज ऑल्सो प्लीजिंग टू द माइंड, मनो, है ना.
So it also gives pleasing to the, it is also pleasing to the mind. So if you listen to any small katha of Krishna, it does this both work. And if we listen to it repeatedly, what will happen? Yeah, सारे हृदय की अभद्रता, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हम शुरू में प्रेयर करते हैं ना, ओम जैसे नष्ट क्या, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो इसी की हम प्रेयर करते हैं कि हरदम हम भगवत गीता सुनते रहे, कि रिपीटेड व्हेन वी लिसन, आवर ऑल द कंटामिनेशंस इन द हार्ट विल गेट क्लियर्ड। तो बार बार सुनते रहने से हमें जो है हृदय की सारी अभद्र कामनाएं, वासनाएं भी हमारी दूर होती है। तो वॉट एवर इज डर्टी थिंग्स इन द माइंड, दे ऑल्सो गो अवे, जो हजारों जन्मों से हमने पाल रखी है। अब जैसे प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ने हिप्पीज को हैप्पी बना दिया था। अर्थात हिप्पीज कौन थे? कौन थे हिप्पीज? हु आर हिप्पीज? Non-anchored people, those who are just materialistically, I mean, enjoying in this world with all, whatever marijuana, whatever, kind of drugs lena and all those things, because US had seen that trend, even it had come to India also. तो ड्रग्स का समय, तो ऐसे लोगों को उन्होंने जस्ट कृष्ण की कथा एवं कृष्ण का कीर्तन करवा के ऐसे लोगों को भी उन्होंने हैप्पी बना दिया। उसमें से कई लोग, ऐसा नहीं सभी लोग, वो नहीं, मैंने बोला उसमें से कई लोग जो इवन नशे की हालत में धुत रहते थे, उनका नशा कब छूट गया पता ही नहीं, और आज वो सन्यासी बन के आज भी है कुछ। तो ये इतनी पोटेंसी है कथा में, इसीलिए इसको बार बार सुनना चाहिए, लेसन अपने लिए, राइट। तो इसीलिए बार बार सुनना चाहिए। तो जब भी हम हर साल आता है जन्माष्टमी, तो हम रिपीट करते हैं कि ये कथा सुननी है। अब कोई रिपीट करने वाला नहीं तो हम स्वयं भी पढ़ लेते हैं। If there is nobody to listen, we ourselves read. So we ourselves are listening. So because when we chant, we do the same thing. We just keep on saying and we only listen to that. इसीलिए that's the reason we say chant it loudly. Loudly in the sense not too much loudly, that you can listen that much loudly. So that clears all your contaminations in your heart, and whatever you may be having, all your habits which you want to live, because we have to follow 4 regulatory principles. So many habits come within that. So even if you have those habits will slowly go away. That's the important part. That is the reason, like Srila Prabhupada used to always say, कि like कि आप जो प्रश्न करते हो वो सही होना चाहिए. That is the reason Srila Prabhupada used to say, whatever questions you ask, that should be the right one. What is the use of asking what is happening today in America, what is happening, and because that has happened, that's over and that's gone. Okay, we have seen a horrible week last 2, 3, 4 days was very horrible. Of course, it's very painful. It's very painful what had happened in Bangladesh. So it's a thing which is painful. But okay, those are all, those will come and those will go. But when you are in front of your guru, so when Parikshit Maharaj was in front of his guru, Shukadev Goswami, what kinds of question you should ask is the example, because this is Raja Uvacha, means Raja Parikshit is asking this question to Shukadev Goswami. So Raja Parikshit ने example set किया है कि क्या पूछना चाहिए. तो वो क्या पूछ रहे हैं? ऐसी कथा बोलो जो कर्ण रम्याणी और मनो रम्याणी, मतलब जो हमारे कानों को और माइंड को दोनों को आनंद प्रदान करे. So say us this. So that is one of the example set by Shukadev Goswami. He is setting an example that such kind of question should be asked, rather than if you go to Guru and say, I am not getting children, what will happen? Because Guru himself is a sannyasi, he will not have children right now, right? So he will not be able to tell you, okay, he will still be able to guide you. But the question is, it should be a right example which should be set, So when you go in front of the Guru, because Guru is there to deliver you Krishna, and when you ask Krishna Katha, he will be more happy. And by listening to that Krishna Katha, both your mind and heart will get purified. तुलसीदास जी भी कहते हैं, जिह्वा से निकली वाणी को सिर्फ हरि कथा कहना चाहिए. जिह्वा से जो वाणी निकलती है उससे सिर्फ हरि कथा कहनी चाहिए. इधर उधर की बातें, इधर उधर की टर्टर नहीं करती रहनी चाहिए. मेंढक क्या करता रहता है? इस भौतिक जगत को रिप्रेजेंट करता है. सो मेंढक इज द फ्रॉग,
Frog. So frog in this world, what does it represent? It represents this material world. And what does it say? It just keeps on making tar, 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 tar. You know, this is the right time. Sawan. No, Shravan ke andar, when you go out, you will see in the night times or evening times, you will see a lot of frogs making a lot of croaking noises. You know, toads and frogs, they'll make croaking noises. What will happen with that noise? Snake will come. Yeah, snake will come. Why? Frog is the bhojan for snake. Snakes. So snake आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी का भोजन है मेंढक को खाना, राइट? मेंढक को खा जाता है वो. तो बट सांप को, how does a snake know where is this frog? Because of the sound. So it makes croaking sound, and then the snake would say, oh, नाग सोचता है ये आवाज यहाँ से आ रही है, चलो यहाँ चलते हैं, भोजन मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा. तो उसके लिए तो आनंद हो गया. मौत को अच्छा जाता है, सांप जाके खा लेता है. So who had invited the death? Frog himself has invited. By doing what? By sound. By unnecessarily making croaking sounds, right? Unnecessarily making croaking sound. Even if he doesn't make sound, it doesn't make any difference. But just he has to say something, he is making a croaking sound. Okay. And that croaking sound invites the snakes, and snakes comes and eats the frog. So the snake represents what? काल. काल चक्र. सांप को दिखाते हैं जनरल. क्यों? सांप काल को खाए जा रहा है. बिकॉज एक सेकेंड जो चला गया कल का वापस आज आने वाला नहीं है ना. सो काल, सर्प जो है सो काल को रिप्रेजेंट करता है, और मेंढक जो है सो इस जीव को रिप्रेजेंट करता है. तो जीव फालतू की टर करके अपने काल को आमंत्रित कर रहा है. इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी जीवा यूज करनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हरि कथा कहने के लिए करनी चाहिए. सो ये लेसन है हमारा कि हम जो भी बात करते हैं, इट शुड बी अगेन हरि कथा. एक तो सुनने में आनंद प्राप्त होता है, दूसरा जो बोलते हैं, वॉट एवर वी से शुड ऑल्सो बी related to Krishna. Okay, we have to say so many things in the office. Boss को बहुत सारी कुछ बोलना पड़ता है ना? We have to say so many things to our bosses, so many things to our peers, so many things to our, subordinates. Okay, whatever be the case, those all you are doing as a secondary aspect to discharge the duties which you have to fulfill as a part of family. Okay. You have to earn something for the family. The family has been given by Krishna, Chaturvarnyamaya system, or means like आपको ये गृहस्थ आश्रम में दिया है भगवान ने. So you have to fulfill your family needs. So okay, so when you pray and go and when you say कि whatever I say should be helpful to me, Krishna. So whatever material things you are doing, the consciousness back of it should be that you are doing this for pleasing Krishna. So whatever best I can do, I have to. Not the consciousness that I have to be mean somebody or just to, or thrash out somebody. Not for that purpose. Okay, you may have to do that. Because even 3 दिन तक जब समुद्र रास्ता नहीं देता है तो भगवान अपना धनुष उठाते हैं कि भय भी न होई न प्रीति. तो भय भी जरूरी होता है, परंतु किस सिलसिले में? भगवान की कथा से सिलसिले में. सो भगवान की कथा हर सिलसिले में हमें जो है सो ये unnecessary talks invites us to the kala, है ना? तो otherwise if we have to keep on listening to Hari Katha, then we will be saved from Kala Prabhav. Because what will happen if Kala has come, यदि काल आ गया आपका, and if you are listening to Hari Katha, oh, it will wait, or even if you, because even if it takes you, you are taking Hari Katha, so your destination is defined. Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyanti kalevaram. So whatever bhava you have, like antakale cha mameva smaran muktva kalevaram. So in the last moment of life, if you remember Krishna, if the kal has come, and if you are listening to Hari Katha, and if you are telling Hari Katha or saying Hari Katha, that means your destination is sure that you will go back to Krishna. So that is the reason unwanted talk will really, and in Bhagavad Gita Krishna says also, कि मैं काल के रूप में आता हूँ. कालोस्मि रूपक क्षयकृत प्रवृद्धो, 11th chapter, Krishna says कि I come in the end as Kala. So Kal is also nothing but me. Kalo asmi aham क्षयकृत प्रवृद्धो.
मैं काल हूं और ये काल समय धीरे धीरे करके आपको खाने आ रहा है ना, तो ये काल भी मैं ही हूं। सो काल को आमंत्रित करना है, अर्थात ये टर्टरबाजी करना है। अननेसेसरी कोई टर्टर करते रहोगे तो काल डेफिनेटली आपको आमंत्रित होगा। तो इसीलिए परीक्षित महाराज इस श्लोक में जिज्ञासा कर रहे हैं। ही इज आस्किंग, कर्ण रम्याणी, कर्ण को आनंद देने वाली और मनोज्ञानी, मन को आनंद देने वाली भगवान आप कथा सुनाए, भगवान की कथा सुनाए, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। सो दैट्स अ रीजन। So this three shlokas, 3-word shloka, and he is asking very specific. I'm not wanting any simple person story. I want Bhagavan Haririshwara's katha. So that is the reason I took up this Krishna's katha during this time. So, okay, so it is very clear. So, कथा सुनने की भी योग्यता होनी चाहिए। आप लोग सब ध्यान से सुनते हो, because last time during Potana we heard, right? We heard the example of the क्या बोलते हैं, आप लोगों को विश्वास होना चाहिए, तभी तो आप कथा सुनने में आपको आनंद आ पाएगा। यदि विश्वास नहीं होगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। देवाशीष प्रभु ने पिछली बार पूछा था, है ना, कि क्या ये घटना सच में घटी थी, पूतना इतनी बड़ी थी और ये सब। मैंने बोला एक एक वर्ड में डिटेल में लिखा है। परीक्षित महाराज को समझाते हो क्या, सुखदेव गोस्वामी ने एक एक चीज का वर्णन दिया है कि उसके दांत कितने लंबे थे, उसके पैर कितने लंबे थे, उसकी कितनी हाइट थी, ये सारी। तो ये सब किसके लिए, ताकि आपको विश्वास हो सके ऐसा चीज है। यदि आप बोलोगे पूतना थी ऐसी तो आपको भरोसा नहीं होगा। इसलिए वो कैसे चल रही थी उसके ऊपर भी बड़ा खूब सारे श्लोक है ना, कि मालती का फूल लगा रहा था, तिलक पर लगाई थी, कंठी लगाई हुई थी, गोपी ड्रेस पहनी हुई थी, कितनी सारी चीजें थी। तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी, तो ये कोई हरीर ईश्वर कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक अद्भुत बालक है, अद्भुत बालक है। 6 दिन के अंदर नहीं तो कौन सोच सकता था पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है। सो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी person. Krishna is not an ordinary person. He is a supreme personality of Godhead. Otherwise, it would have not been possible for him to kill Putana. So when he was just 6 days old, and today he is 3 months 18 days old. Okay, today is 3 months 18 days old. So कृष्ण के जन्म का नक्षत्र पता है? रोहिणी। तो आज वापस रोहिणी नक्षत्र ना, आज है? नहीं, आज वापस हम कथा सुन रहे थे। आज वापस रोहिणी नक्षत्र आया था 4थी बार। तो 3 महीने 18 दिन तो रोहिणी नक्षत्र पुनः आया था। और नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं। कृष्ण जी के जो मरने के लिए आया था, तो गोकुल में जितना सब बच्चा था सबको मारा था। वो जो पुतना, यस, कई बच्चों को मारा था, कई बच्चों को मार के उसको मारने आया था कृष्ण को। यस, मतलब कृष्ण को इधर ही करके, मतलब कैसे पता चला? उसको ये पता नहीं है कृष्ण किधर है, उसको सबको ही मारना था। हाँ, एक्चुअली हाँ, शायद लास्ट टाइम मैंने कृष्ण बोल दिया तो हो सकता है। कंस ने ये ऑर्डर दिया था कृष्ण को मारो, अर्थात जितने बच्चे जन्म लिए अभी इस हफ्ते में 10 दिन में जितने लोग बच्चों ने जन्म लिया सबको मारो, ठीक है। तो वो सबको मार के ही आ रही थी, मारते हुए आ रही थी। और वो मार के दूसरे, सिर्फ गोकुल में ही नहीं, अलग अलग गांव में भी वो मार के गोकुल में एंट्री ली थी। तो गोकुल में एंट्री ली तब वो इनके यहाँ गई, क्योंकि ये नया नया बच्चा जन्म हुआ है, तो वहां गई थी। तो ऑलरेडी वो खा खुआ के आई थी बहुत सारे बच्चों को, इसलिए उसके नेल पेंट वगैरह हमने सब डिस्क्राइब किया था कि कोई कैसे रेड थे और बालों में क्या था वो। मैंने बोला ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल लिया था। कोई 3-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बिता के आता है तो कैसा दिखता है उसका एग्जांपल दिया था। तो जन्म नखा 3 महीना 18 दिन 108 दिन 108 दिन के थे। ओके, 108 डेज के थे। तो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 दिन में रिपीट होते रहते हैं। तो 27 नक्षत्र 4थी बार रिपीट होके ये वापस आज रोहिणी नक्षत्र आया था। तो नक्षत्र के बारे में जानकारी है आप लोगों को? नक्षत्र क्या है? नक्षत्र आकाश में जो स्टार्स वी सी ऑल द स्टार्स इन द स्काई, राइट? सो नक्षत्र इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, वी कॉल इट एज कॉन्स्टलेशन इन इंग्लिश, ग्रुप ऑफ स्टार्स. So this is our earthly plane. Above the earthly plane, there is Bhuvarlok and there is Swarglok. So in between them, there is this Swarg ka ye jo, in between them there is this constellations, and below the constellations are the sun, moon, and some planets. Okay, some moons and all the planets.
So they are rotating. So above the earth, sun is the first, second is moon in terms of height. Distance wise, moon is first, sun is far, so distance wise. We'll talk about that something. But today nakshatra aaya, so nakshatra are 27 constellation. Those are different shape constellation and given the names accordingly. Okay. So like you might be hearing those Ashwini, Bharini, Kritika, Rohini. So ये चौथा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र. So 27 नक्षत्र होते हैं. तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं. Means each nakshatra is divided into 4 quadrants. And 2.25 quadrants makes one Rashi. Above this nakshatra, see these nakshatra are some shape. Okay, Ashwini has some group of stars, which has some shape. Bharini has some shape. Rohini has some shape. So 27 mean, so these shapes of stars are in the circle. And above that, there are 12 Rashis. 12 Rashis are nothing but these same stars, how they represent the shape above is called Rashi. So every 2.25, सवा दो नक्षत्र का एक राशि होता है. सवा दो नक्षत्र का एक राशि होता है. 2.25 into 12 rashis is equal to 27 nakshatras. And 27 into, so some nakshatras are not 24 hours. So when I say 4 quadrants, each nakshatra is divided into 4 quadrants. One nakshatra may be smaller because of the group of stars are less. So that nakshatra may finish in 20 hours only. Next nakshatra would come. The next nakshatra, because sun is traveling, okay, so it may cross one nakshatra in less than 24 hours, and some nakshatra are bigger, which takes more than 24 hours. That is the reason sometimes we see one tithi is coming on one particular nakshatra which is small, but the day is not over. So the day is decided based on the Suryodaya. There is this particular Rashi, okay, this particular nakshatra. But that nakshatra is finished, but that Rashi continues even till next day. So, that Rashi comes within the day and finish it off. And some Rashis extend, some nakshatras extend for the next day, more than 30 hours sometimes. So, 24 plus 6, तो 6 घंटे अगले दिन के उसमें आएंगे. इसीलिए कभी कभी तिथि आप देखते हो 2 एकादशी आ गई, 2 पूर्णिमा आ गई, ऐसा करके 30 डेज का महीना आता है 27 दिन के नक्षत्र है, बट ये 30 दिन करते हैं पूरे बिकॉज ऑफ देयर साइजेस. ओके, तो ये नक्षत्र, तो इसीलिए हम लोग, बट हमको फिर कौन सी करनी होती है? द वन विच इज सूर्योदय कालीन. तो जो सूर्योदय कालीन प्लस बहुत सारी चीज है, उसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, बट ये नक्षत्र होते हैं. तो नक्षत्र ऐसा चौथी बार रिपीट हुआ था और अभी वापस रोहिणी नक्षत्र आया था. ठीक है, आज के लिए नक्षत्र का ज्ञान इतना, बहुत कुछ है, पूरा ज्योतिष शास्त्र उसी के ऊपर बैठा है, तो वो आज मैं नहीं कह सकता. तो उसी दिन ये स्पेशली वापस जब रोहिणी नक्षत्र आया था 3 महीने 18 दिन पे, तब घर में एक घटना घटी थी. कृष्ण ने पहली बार पलट ली थी, करवट ली थी. कितने लोग प्रसन्न होते हैं, है ना? The moment the child has taken the turn on its own, घर में खुशी का माहौल हो जाता है. अरे पापा, इसके पापा सुनो, अरे दादाजी सुनो, आज इसने पलट गया, अपने आप पलट गया, आज अपने आप पलट गया. बड़ा एकदम रोमांचक टाइम रहता है जब कोई बच्चा घर में रहता है. तो आप लोग नोट करते हो, स्पेशली जब कोई पहले दिन भी कर सकता है, कोई बाद में भी कर सकते हैं, बट कृष्ण की बात कर रहे हैं आज, कृष्ण कथा. तो कृष्ण ने बराबर इस 3 महीने 18वें दिन पे वो उन्होंने पहली बार अपने आप पलटी ली. तो है ना, पलट जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं. तो बड़ा, फिर ये तो बड़ा उत्सव का मामला है. तो बोले आज कुछ स्पेशल चीज बनेगा. क्यों? हमारे मुन्ने ने आज पलट करवट ली है, आज हमारे मुन्ने ने बैठना सीखा है, आज हमारे मुन्ने ने चलना सीखा है, क्रॉलिंग. आज हम कल जैसे प्रभु से बात हो रही थी, कल ही वो जो है सो अपने राधा जस्ट स्टार्टेड गेटिंग अप, है ना, खड़ी होके शी इज जस्ट गेटिंग अप एंड गोइंग फॉर 2 steps एंड फॉलिंग, राइट. तो अभी उसका समय खड़ा होने का है. तो दैट्स द टाइम. सो द मोमेंट यू हियर ऑल दिस, एकदम हृदय जो है आपका पुलकित हो जाता है. तो नंद बाबा और यशोदा मैया का भी हृदय बड़ा पुलकित हो गया था. सो दे वर ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी कि सो व्हाट हैज टू बी डन. फर्स्ट थिंग इज व्हेन द चाइल्ड टर्न्स ऑन इट ओन, फर्स्ट इंडिकेशन इज दैट ही इज हेल्दी. फर्स्ट थिंग इज दैट ही इज हेल्दी. दैट्स द इंडिकेशन. दैट इज आवर लेसन टू अस. वी हैव टू अंडरस्टैंड इन लाइफ दैट if a child has turned, he is healthy. If he is not turning, it's a problem. We have to take him to the doctor, right? He's not speaking, that's a problem. He's not walking at all, it's a problem.
So, some kuch hai. So, all these indicate that a child is a healthy child. So, that's a lesson number 3, right? 3 हो गया, 2 हो गया. ये तो कितना पॉइंट ठीक है, लिख लिया, कोई बात नहीं. तो बच्चा करवट लेता है, समझ लो. तो यशोदा मैया और ने भी सोचा कि चलो आज उत्सव होना चाहिए, ब्रज में उत्सव होना चाहिए, गोकुल में आज उत्सव होना चाहिए. गोकुल इज पार्ट ऑफ ब्रज. आई सेड ब्रज मींस गोकुल इज पार्ट ऑफ ब्रज. बाद में उन्होंने वृंदावन गए थे, वो भी ब्रज का ही पार्ट था, बट गोकुल ब्रज में आज उन्होंने बोला कि आज उत्सव होना चाहिए. सो नेचुरली, हाउ डू यू सेल योर, हाउ डू यू express your happiness? Arjuna also asked that question, right? How do you share that happiness? With everybody, friends, relatives, everybody, right? Yeah, that's what even Arjuna questions, that if everybody dies, then what will I do? Where will I share my victory? Anna? So when you have happiness in your heart, you have to distribute it. That's the thing, because happiness has come to only for distribution. So how do you distribute it? Call everybody for Mahaprasad. That's the best thing. प्रभु जी, माता जी, आप लोग आ जाइए, है ना, आ जाइए, आज महाप्रसाद. ओके, तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने भी पूरे गोकुल को सिगरी न्योता दे दिया. सिगरी न्योता मतलब पूरे घर का, है ना. ये हमारा राजस्थानी टर्म इसलिए हो गया. सपरिवार न्योता दे दिया, सपरिवार, है ना. हम लोग कार्ड में लिखते हैं ना, जब निमंत्रण देते हैं, कार्ड का, वेडिंग का कार्ड देते हैं, तो उसमें लिखते हैं सो एंड सो, मिस्टर एंड मिसेस, मतलब खाली 2 ही लोग आओ. मिस्टर एंड मिसेस विद फैमिली, हिंदी में उसको सपरिवार लिखते हैं ना. तो इसका मतलब पूरे परिवार को आमंत्रण है, कहीं हाँ, परिवार सहित. तो कई बार एस्टिमेशंस लेने के लिए इस प्रकार सूची बनाई जाती है ना, हम लोग भी निकालते हैं. Who are attending, please come, all are invited, but confirm numbers so that we can plan prasadam. And that is why the whole question is. So वहां पे सिगरी नहीं होता था, तब उनको पता था मेरे गांव में इतने 1000 लोग हैं. He knew, Nanda Baba, that I am the collector of this particular place. I am already the businessman, because they were all dealing into milk and curds. So we are already the highest businessman. I am the king person here. He knew how much of my praja is there. So he said, everybody is invited, not even leaving anybody. So he immediately said, this is the beauty of our Indian systems, how we celebrate our happiness. So Nanda Maharaj is also giving this example that, the moment he is happy, he is invited everybody. Not only everybody, that everybody includes workers, Brahman, everybody. और उनको बुला के फिर वो उनसे स्वस्ति वचन भी करवाते हैं, बच्चे को फिर ये करवाते हैं, फिर दक्षिणा भी देते हैं ना. So last time also probably you noted that, right? कि ब्राह्मणों को, तो आप लोगों को भी एक ये लेसन है कि अपने घर when you have children at your home, you should display such activities in front of them, that calling of brahmanas, calling of relatives, okay, and feeding them nicely, listening to the brahmanas, listening to the katha. So you have to teach your children also accordingly, or you have to display in front of your children these all things, so that they also remember, okay, when they grow up in life, they also remember that these things are possible, and we also have to do when these things happen at home. And इतना ही नहीं, ब्राह्मण को दक्षिणा कितने लोगों के घर में पता नहीं. जैसे ब्राह्मण आता है, स्वस्ति वाचन करके आता है, तो दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मण को, तो वस्त्र के साथ में, या फिर ओके, अंग वस्त्र दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, कुछ भी दो. आपके घर में चावल होता है, वो दिया जाता है. तो क्या करते हैं बड़े लोग, दादा लोग क्या करते हैं, पोते को बुलाते हैं, है ना, पोतियों को बुलाते हैं. Grandsons, grandchildren, the grandfather will call and say, go and give this to the brahmana. Okay, give a glass of rice to the brahmana. You give this 10 rupees to brahmana. Those days 10 rupees also very big thing, right? You go and give this to the brahmana, right? So what will happen with that? They also learn the practice, the Sanatan Dharma, and they also learn this humility. They also learn the humility, how we have to bow down, how we have to respect. So right from childhood, a good training is imparted to all the children of the house. So होता क्या है उससे? क्योंकि ये तो कोई साधु आया तो क्या, वो वैष्णव आया है ना घर में, तो उनसे वैष्णव से आशीर्वाद प्राप्त होता है. बच्चों को वैष्णव से आशीर्वाद प्राप्त होता है. That's the reason you have to give this lesson back home to children also. That whenever Vaishnavas come, we have to
respect them and how they have to be honored. You know, nowadays songs come, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, हाँ? निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा. We don't know who has come in front of us in form of a Vaishnava and why has he come. तो किस रूप में हमें नारायण मिल जाए, किस रूप में हमें कृष्ण मिल जाए, ये पता नहीं रहेगा. तो कृष्ण तो साक्षात अभी गोकुल में है, और जब नंद महाराज ने सबको बुलाया तो कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे सबके, है ना. तो ये मनीषा से बुलाया, तो हमें भी ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए. पता नहीं ब्राह्मण का पानी लाना, तो पानी का ऊपर बैठ जाए माता जी. नहीं तो हाँ, तो नारायण किस रूप में मिल जाएगा हमें पता नहीं. तो और निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा. पता नहीं कब कैसा किसी का हाथ फिर जाए कि हमारे हृदय में भक्ति का बीज बो दे, है ना. जैसे कोई गुरु महाराज ही आ गए, जैसे हम लोगों ने ले लिया था इमीडिएटली. कैसे गुरु महाराज ने आके कुछ प्रवचन दिया, यार हम तो एकदम सुन के लाइक वी वर सरप्राइज कि सच काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो एग्जिस्ट. हमने जाके उनसे एस्पिरेंट ले लिया. सो वी नेवर नो, किसी का चैत्य गुरु लेट हो सकता है, किसी का चैत्य गुरु जल्दी हो सकता है, परंतु कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स वहां पे उस चीज को आ जाएगा. तो हृदय में कब भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए हमें पता ही नहीं चलता है. हम सिर्फ क्या करते हैं, बस आया आज केक कटिंग होना चाहिए, आज पलट गया, आज वॉकिंग करने लगे, आज केक कटिंग होना चाहिए. केवल केक कटाई करते हैं और ऊपर से मोमबत्ती जला के बुझाते हैं, वो उसमें कोई मतलब नहीं है. एक्चुअल संस्कार है वैष्णव का इस प्रकार सम्मान कीजिए, वैष्णव को बुला के प्रसाद खिलाइए, और दिस इज मच मोर बेनिफिशियल. तो ये जैसे दुर्वासा मुनि, हमने लास्ट टाइम भी दुर्वासा मुनि का एग्जांपल लिया था, क्योंकि है ना दुर्वासा मुनि बहुत सारे. तो दुर्वासा मुनि, कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की के लिए प्रसाद बनाया था. उनको बचपन में काफी, उनको बचपन में उनकी माँ ने, कुंती महारानी की माँ ने उनको बोला था, ये आए हैं ऋषि आए हैं, उनकी सेवा करो, उनके लिए कुछ बनाओ, उनके लिए जो भी सब कुछ बना के रखो, तैयारी करके रखो. तो कुंती महारानी ने पूरा लगन से उन had served Durvasa Muni. So what happened? Durvasa Muni was a Trikaldarshi, right? He was already a Brahmagyani. So what did he do? He gave a benediction to Kunti Maharani. Ki bhai, Kunti Maharani may have a problem going ahead in life. So he gave a benediction that, you know, tomorrow, if you do not have a child, you take this mantra and just recite this mantra. Some demigod, some Devi Devta will come to you for help. Just think about that demigod or Devi Devta and call. They will come and fulfill your desire, right? So he knew that going ahead, his husband Pandu would be cursed and this will be a problem to us. Similarly, once Durvasa Muni also came to Gokul, Barsana, and he blessed Radharani in the similar way. He also blessed Radharani in the similar way. That Durvasa Muni is very dangerous Muni, because, you know, if he is not satisfied, he immediately curses. So people are worried to serve him. But if he has come and if you don't serve him, then also it's a problem. And if you serve him and if some mistake has remained, like, you know, Maharaj and all those have come here. We try to make, you know, whatever Maharaj likes, we do. But okay, we may not do, but Maharaj will not curse us for that, right? But Durvasa Muni used to curse it off. What food have you given me? What kind of dal is this? Go. And finish. So everybody was worried. So Radharani's mother, इनका नाम था कीर्तिदा, आपका नाम से याद आता है ना. तो कीर्तिदा had said Radharani that, you know, you prepare things for Rishi, so that, you know, and you serve Maharaj. So when Radharani prepared food for Durvasa Muni, and Durvasa Muni was so pleased, he said, you have wonders in your hand that, you know, whoever will eat, you know, he says, may the grains you cook, that's what is written, I wrote that quote, may the grains you cook taste sweeter than the nectar, and may anyone who eats them be blessed with the long lifespan.
So if Radharani is preparing the food and giving to anybody, that means imagine that these things have come to you. You get sweet, they become tastier than nectar, and also you will get long life. So that's the reason our अपने क्या बोलते हैं Yashoda Maiya. That is the reason why our Yashoda Maiya is to call Radha Rani that you prepare food for Kana. You prepare food for Kana. क्योंकि फिर कान्हा ऐसा उसको नेक्टर की तरह स्वीट लगेगा and he will become long life. मदर की इच्छा, because they are in the वात्सल्य भाव. उनको पता नहीं है उनका बच्चा स्वयं हरीर ईश्वर है, बट उनका भाव ये है कि भाई बड़ा पौष्टिक आहार मिले. So that's the reason in ISKCON, this entire Prasad Seva is called Radha Seva. Because we don't prepare directly for Krishna. We have no qualification to serve Krishna. Only by taking the Ashirvad of Radharani, we start cooking the food. Or, so that's the energy of Radharani, because cooking food is an energy. It's not that easy that, you think in your mind and it becomes, no, you have to do some shrama. That's required some energy. So that energy comes and when it is offered to Guru Maharaj, through Guru Maharaj to Parampara, and then up to Balaramji, and then Balaramji also gives it to Radharani, and Radharani finally gives it to Krishna, and then it returns back from her hand to everybody, and that is why it becomes prasad. So the whole bhava through which you prepare prasadam and bring is that it has to go through Radha Seva. And if Radharani is pleased, then we all are pleased. इसीलिए उसको उस भाव से बनाते हैं, कभी चखते नहीं है उस चीज को, कभी पहले चखना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो बना के लाते हैं, बनने के बाद में चखो आप जाके. माता जियों की आदत होती है कि भाई नमक रह गया होगा, ये हो गया, आपको अगर डाउट है तो साथ में नमक भी परोस दो, बोलते हैं, है ना, ताकि भगवान खुद एडजस्ट कर लेंगे, तो आप बाद में आप खुद कर लेना. तो इसीलिए ये तो राधा सेवा इसीलिए बोला जाता है. तो भोग बनाना हो तो नंद बाबा ने भी फरमान जारी किया कि आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, हर किसी को आज आमंत्रित है, आज हमारे घर पे बच्चे ने टर्न लिया है. तो हम भी यदि हम पूछते हैं किसी को भी कंफर्म करो, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कि जो सबको प्रसाद मिल जाए और किसी का प्रसाद कम ना हो, एटलीस्ट नंबर प्लानिंग में कभी ऐसा ना हो, इसीलिए हम भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है. तो सब आए, तो सवेरे 7 बजे आ गए सब लोग, क्योंकि हो गया था, तो सवेरे 7 बजे सब लोग आना शुरू कर दिए. तो जैसे ही 7 बजे आना शुरू कर दिए लोगों ने, तो आए और लगा रहा तांता भी, जाके कान्हा को देख रहे हैं. अच्छा, कान्हा 3 महीने का हो गया, पलट गया, कैसे देख रहा है, क्या पहना है, क्या लगाया है, कौन सी ड्रेस पहनी है, हाउ इट इज सूटिंग टू हिम. सो एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग. We think people are coming and seeing to Krishna and having darshan of Krishna, whereas it is reverse. Krishna is having darshan of all his fallen, all his associates or souls who are coming for his darshan. We think that हम भगवान का दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं. नहीं, भगवान आपका दर्शन करते हैं. अरे भाई, ये मेरा भूला भटका आत्मा है, जो मैं परमात्मा हूँ, ये मेरी भूली भटकी आत्मा है, कहीं खो गई थी, आज मेरे को दर्शन करने आई है. सो इट इज दैट. तो कृष्ण उल्टा देख रहे थे सबको कि भाई यहाँ पूरा गांव आ गया नहीं आ गया है, कौन है ये नया व्यक्ति, कौन है ये दूसरा व्यक्ति. कृष्ण वॉज गिविंग दर्शन. तो ये ऐसा जो है सो ये चलता रहा. सुबह से दोपहर हो गई, क्योंकि लोग आते रहते हैं, ग्रीटिंग चालू रहता है, हंसी ठेली मजाक चालू रहता है, क्योंकि इतने सारे गांव को बुलाया तो खाना भी तो बनाने के लिए. और पहले ही मैंने ऑलरेडी इसमें बताया था कि नंद महाराज का कोई किचन कोई ऑर्डिनरी किचन नहीं था. वहां पे 3000 दासियां एक साथ काम कर सकती, उतना बड़ा किचन था, है ना. तो खाना बनना हो तो एकदम खाना बनता था, एकदम पूछने की बात ही नहीं है. तो सब लोग आए, मिले, हंसी खुशी कर रहे थे, और खाना भी बन रहा था, प्रसाद भी बन रहा था. तो अब दोपहर का समय हो गया, ऐसा करते करते दोपहर हो गई. ग्रीटिंग द लॉर्ड, हम इसलिए गोविंद आदि पुरुषा, आप देखते हो इस्कॉन में आरती है, वो ग्रीटिंग द लॉर्ड की आरती है, कि भगवान ने जैसी नए वस्त्र पहन लिए. अब घरों में हम लोग कभी कभी 15 दिन में एक बार रहता है, बट लाइक मंदिरों में तो डेली आप देखोगे कि वस्त्र बदले जाते हैं. तो वस्त्र जब बदलते हैं तो गोविंदा आदि पुरुषा तमहम भजामि, उसका एक लिए लगता है, श्रृंगार आरती जिसको हम बोलते हैं. तो उस समय हम भगवान को देखते हैं कि वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समस्तम बुध सुंदरांगम
उनके एक एक अंग को उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है उस पर्टिकुलर गीत के अंदर। तो माताजियां जो ये करके आती है ड्रेसिंग, बाहर आके उनका काम पहले वही होता है, माताजियां या प्रभु जी जो भी है, क्योंकि इंडिया में प्रभु जी करते हैं, अन्य जगह कहीं माताजियां भी हेल्प करती हैं। तो आके वह देखती है, जब वो गाना है तो उसका मीनिंग पता रहना चाहिए, कभी और हम भी सुनेंगे उसका मीनिंग। तो उस मीनिंग के थ्रू कि भाई उनके आंखों में ये लग गया क्या, उनके गले में वो मणि आ गई क्या, उनके कानों पे मकर कुंडल लग गए क्या, उनकी बांसुरी आ गई क्या, उसके तिलक आ गया क्या, उनका मोर पंख आ गया क्या। तो द गीत इज दैट। हम लोग बस जल्दी जल्दी में रहते हैं, ऐसा देखते हैं, बट वो एक एक वर्ड को उसके ऊपर भगवान को ये गौर करने का है, अच्छा भगवान ने आज ये पहना है, वो रसास्वादन ऐसा करने का रहता है। So Darshan Aarti, I was talking about why, you know, that Darshan Aarti song has such a deep meaning. So when people who do the Shringar, by listening to that, they have to continuously contemplate also, oh, this is done, oh, this is done, oh, this is missed out. So what happens immediately after that Shringar Aarti? Immediately the curtain closes and that thing is put and again opened. It happens many of the times in temples, you see. Immediately पर्दा वापस बंद हो गया, क्यों? भगवान को कुछ करना है। क्यों? वो कुछ रह गया था, वो याद आ जाना चाहिए कुछ रह गया है तो आपको। तो दोपहर हो गया, तो फिर मैया यशोदा, she was thinking, Yashoda was thinking that it is afternoon now, we have to arrange for prasadam. Still time is there. So prasadam. So, but Kana was there. So if we put in the, like, you know, he's already turned today. If I put her in the cradle, he may turn from the cradle. So I cannot put, we also think that, right? We cannot leave alone if he is putting in the cradle, because if the moment he gets up and he turns, then it is gone. So Maya Yashoda thought, now cradle is not a safe place for him. So I should find in such a place that, you know, where he can sleep happily. Okay, and then we will serve everybody food. So what did she do? She went outside. It's a lawn. For us, if we have to do this function, we have to take lawns, right? Ishtara, we call it here. So we have to take ishtaras. So there, Nanda Baba King Mahal had a lot of lawns. So in the lawn, there was a big cart. There was a big cart. And on that cart, there were a lot of mud vessels, you know, this pots and all those were kept. These pots are all part of Vedic system, you know, they were the Vaishyas dealing in curds, milk, ghee. So all those were stored in those earthen pots only. And those earthen pots were also being helpful in cooking also. So Hindi में उसको छकड़ा बोलते हैं ना, छकड़ा. तो छकड़े के नीचे बड़ी जगह थी. There was a lot of space below that cart. So what did Maya Yashoda do? Went inside, brought such kind of reshmi gaddi, and on that one nice saf, you know, like the chadar on that, and put the pillows across, and then she thought, you know, I will make Krishna sleep here, so that till the time he sleeps, it's their own lawn inside their house only, and it was not like, you know, it was neither sunny, neither, I mean, it was sunny, but it was not too hot. So, you know, there is this will protect naturally as a shade, you know, because those days they did not have fans and all that, right? So the outside the wind was also very nice, because, you know, if you have taken August is the birth of Krishna, and September, October, November, mid-November or December starting. So it is cold. Okay. In India, it is generally cold, right? And so she said, okay, I'll place him below this cart. Okay. Or then I will go. So, and then, but what to do? So, then who will take care of him? Because everybody will be busy in serving. So there were children like, you know, Priyal and then Ritika and, you know, all those kinds of children were there, right? So, इसका नाम क्या है अपने? सेम हाँ, देव ही है इसका भी नाम भी, हाँ, देव, कौशिक, हाँ. So कौशिक, रितिका और प्रियल, हाँ, इनको मैया यशोदा ने बोला कि तुमको कान्हा का ध्यान रखना है, ये सो रहा है, बस उसका ध्यान रखो, कहीं जाना मत, यहीं खेलो, ठीक है? ठीक है ना? तो कान्हा जी वहां बैठे, ध्यान रख रहे हो ना? तो बस ये सोच के कृष्ण ने भी आंख नहीं बंद करी, और माता ने सोचा अब ये सो गया, और वे निकल गए. ओके, बट उस छकड़े में, in that cart, there was one demon.
His name was Shaktasur. He got the name because he took that body, but there was a demon. He was Hiranyaksh's son. Hiranyaksh, you know who was he? Hiranyakashipu and Hiranyaksh. पता है ना, वराहदेव के समय के। तो हिरण्याक्ष का एक पुत्र था उत्कच। उत्कच बॉडी बिल्डर था। He had a very nice body. Like today also we see many bodybuilders in the gym and all that. Maybe he was also going to gym those days. So he was very, उसको बड़ा घमंड था बोलते अपने बॉडी के ऊपर। He was possessive about his body. He had good biceps, triceps and डोले शोले ऐसे बहुत थे, तो उसको थोड़ा घमंड था कि एंड किसी को भी ऐसे चलते फिरते ऐसा रोक लेता था। He used to stop anybody. He used to trouble them and laugh at them. बॉडी में बहुत बल था, तो फिर उस बल का बहुत वो दुरुपयोग करता था। अच्छे खासे किसी के घर के पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता था। कि असुर का पुत्र है तो असुर की खुरापाती दिमाग रहेगा, बिकॉज इज सो वो क्या करता था कि इसको गिरा दूं, उसको गिरा दूं, ये परेशान कर दूं, वो परेशान कर दूं। अच्छी बॉडी मिली है तो उस बॉडी को भी अच्छी तरह से भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में आप देखते हो ना, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स है वहां पे। हाँ, अखाड़ा, बात अभी वही आएगी ना। तो भगवान ने भी किसी को अगर अच्छी बॉडी दी है तो उसको उनकी सेवा में किस प्रकार लगाया जा सके, वो अखाड़े वालों को जगन्नाथ जी को उठाने के लिए काम आनी चाहिए। बॉडी बननी चाहिए तो जगन्नाथ जी को सेवा कर सके, जगन्नाथ जी को उठा के मूव हो सके। बॉडी को उस रूप में यूज करना चाहिए, न कि अपने घमंड के लिए जैसे उत्कच कर रहा था। ये अभी छोड़ दिए करके इस बार बलवंत गिर गए। पकड़े हुए थे, बट हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, बलभद्र जी स्लिप हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बॉडी भी यदि कोई बनाते हैं तो उनका भी कोई उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार हम इस बॉडी को भगवान की सेवा में लगा सके। हाउ डू वी utilize this body? If you are developing a body, then that body also should be used in the service of the Lord. Otherwise, no use of that body. This body has been given by Krishna. Otherwise, no use of that body. So, Srila Prabhupada once went to a gym. It was not gym, उसको व्यायाम शाला, तो ये बोलना पड़ेगा व्यायाम शाला। तो इंडियन आज के डेट में जिम है। Srila Prabhupada entered one व्यायाम शाला once. And he just was having a round and people were dedicatedly dand बोलते आज today we have different instruments, but those days व्यायामशाला में आप देखते होंगे, मैंने भी देखी है व्यायामशाला कैसी रहती है। अब नहीं दिखते हैं, बट बचपन में मैं गया था तब मेरे को पता है। तो मामा के साथ गया था मेरे, तो वो दंड घुमाने वाला, लकड़ी का बड़ा सारा और स्टिक्स और अलग अलग, बट ओके दे वर आल्सो। हाँ, सो है कुछ कुछ जगह है प्रभु, बट आज सिटी में देखने नहीं मिलता है। सो डंबल्स वो सब भी थे, बट देन डिफरेंट रूप में। So Srila Prabhupada entered that Vyayamshala and then he could see people are doing, and there is Hanuman's big photo on which har was put, and person over there first put the deepam and then prayed, and then he started the gym, and Srila Prabhupada was looking at this. Then he says, you have put Hanumanji over there, so you want to become like him? So he says, yeah, he is our ideal gym master. Today people put Swart, Janegar, this, Janegar and all those. But then those days, Vyayam, everybody used to do. Not today, it is right from Krishna's time also, Vyayam is happening. So Vyayam में वो समय हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी, भाई हनुमान जी की तरह बनना है, because हनुमान जी had a very good body and उनके पास इतना बल था कि पहाड़ को उठा के ले आते थे, है ना। तो वैसे बल हासिल करना है। तो श्रीला प्रभुपाद उनको बोले कि भी ये बॉडी हनुमान जी की तरह बॉडी बनाना है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, यू शुड डू। बट तुमको पता है हनुमान जी किसकी सेवा करते थे? तो सब लोगों ने बोला राम जी की सेवा करते थे, है ना। तो बोले आपको राम जी का नाम लेना चाहिए, उससे वो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो आपको हनुमान जी के थ्रू ये बॉडी मिलेगी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बोला आप जो कर रहे हो करते रहो, वेरी गुड, बट ये न के न प्रकारेण ये न ये नावतेरेण, है ना, जो फर्स्ट का वर्ड आज श्लोक का, ये न ये नावतारेण, किसी ना बाय हुक और बाय क्रुक Srila Prabhupada could bring anybody into Krishna consciousness. So he said,
राम की सेवा करते थे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो बॉडी बिल्डर बॉडी बना रहे थे उनको भी उन्होंने कृष्ण प्रेम किस प्रकार प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद had that habit. Okay, so येन केन प्रकारेण, that is the reason why somehow the other people get Krishna conscious. That is what is our mantra. But either राम को सेंटर में रखो, कृष्ण को सेंटर को रखो, जो भी भाव। When we heard about Ekadashi katha of Vitthal, that time also I said, whatever you have, you take our Tirupati Balaji, you take Vitthal, you take Radha Krishna, all are non-different. They are the same. Or Vitthal Rukmini, it is non. They are all non-different. So yena yenava terena, you do you do Ramanam, and automatically Hanuman will bless you. So this is also a lesson to us. Srila Prabhupada never asked them to leave anything. He said you continue doing, but how you can connect that also to Krishna. Today we think exercise, how will it help Krishna? There is. Or we can use our body in all other things, you know. So बच्चों को उठा के घुमाने में काम आ सकता था। पहले थोड़ी कोई गाड़ी घोड़ियां थे, सब बच्चों को तो यहाँ कंधे पे सर पे ऐसे ही लेके जाते थे बच्चों को। तो उनकी आराधना करो तो हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होके आपको स्वतः ही ये सब दे देंगे। तो उत्कच ये नहीं कर रहा था। उत्कच क्या कर रहा था? वह एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में चला गया। लोमस नाम के एक ऋषि थे, उनके आश्रम में चला गया और उस आश्रम में बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे, क्योंकि साधु संत का आश्रम क्या रहता है, नेचुरल फ्रूट्स रहते हैं, रूट्स रहते हैं जो वो खाते हैं ना, कंद मूल फल फूल। और ये असुर प्रवृत्ति वाला था, उनके आश्रम चला गया, तोड़ मरोड़ जैसे सब कुछ निकाल के फेंकना है, उखाड़ उखाड़ के सबको फेंक दिया। तो लोमस ऋषि बड़े ये हो गए। तो और ऊपर से हा 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 ऐसे अपने अपने ये दिखा रहा है बाइसेप्स ट्राइसेप्स को। तो लोमस ऋषि ने बोला तुझे अपने मींस लाइक यू आर हैविंग सो मच ईगो ऑन योर बॉडी, और यू नो तुम्हें अपने इसके बॉडी के ऊपर घमंड इतना है कि जाओ तुम बॉडी लेस हो जाओ। तुम्हारा शरीर के ऊपर तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हारा शरीर छूट जाए, ऐसा कहकर श्राप दे दे। तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। और जैसे सांप का आप देखते हो स्किन उतरता है, आपने देखा नहीं तो यूट्यूब में देखना पड़ेगा, बट गाँव में कभी कभी तो सांप अपना पुराना स्किन छोड़ता है, नई स्किन ऑटोमेटिक आ जाती है ना। तो वैसे देखा उत्कच ने कि उसका सारा शरीर हवा में विलीन हो रहा था, उसका शरीर कुछ भी नहीं रहा था। तो वह तुरंत चरणों पे गिर पड़ा लोमस ऋषि की, भाई गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दो। साधु लोग, दामोदर कथा भी आप सब लोगों को पता है, आज तो नहीं लेंगे, इस बार तो दामोदर नहीं होगा, जब दामोदर में दामोदर कथा लेंगे कि इतने दिन नहीं है जन्माष्टमी को दामोदर में होंगे दामोदर में होगी दामोदर कथा। आप सबको पता है, मैंने ये बोला कि भाई उसके अंदर भी नारद मुनि तो बड़े साधु पुरुष है, कोई श्राप देते हैं तो किसी के अच्छे के लिए निकलता है। वैसे ही लोमस ऋषि ने जब श्राप दे दिया, when Lomas Rishi gave this shrap to Utkach, it became a boon for him. How? He said, you know, when he fell on his feet, then he said, okay, now I've already given this shrap, you cannot get out of it, but I can give a nivaran for you. That, you know, I can give you how you can get rid of it. He says in Dwapara, Krishna will come when his feet touches you. That time you will get relieved and you will get back your body. So fine, then so he has to wait till then. So as a bodiless person, he used to always search bodies to enter into that body and do his work. Whatever body he used to get, he used to try to do, and because being Asura Pravritti, he was in touch with Asura. So that is how, and because Krishna came in Dwapara and relieved him by this katha, we'll listen. So he got relieved. So Brahman ka श्राप भी वरदान होता है। तो कभी कभी कोई वैष्णव, बड़ा वैष्णव हमको डांट दिया, उसको बुरा नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कोई आपको उस समय डांट की आवश्यकता जरूरत थी, शायद आपको किसी के मुख से डांट खाना पड़ गया। बड़े लोग डांटते तो हम वापस उठा के डांटते थोड़ी है, आजकल तो वार्तालाप का आदत हो गया। परंतु जब कोई बड़े घर में दादा ने कुछ बोल दिया तो मुंह से चुप भी नहीं निकलती थी, चुप भी आवाज नहीं निकलती थी, डिसिप्लिन था।
तो कोई डांट देता है तो आपके अच्छे के लिए ही डांटता है, ये लेसन है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, फिर है ना। नल कुबेर मणिग्रीव को भी श्राप मिला था तो वही हुआ था, इधर भी इसको उत्कर्ष को श्राप मिला था तो यही हुआ था। तो ये कृपा बन जाती है कि बहुत ही जल्दी इसको द्वापर में ही उसको वापस पुनः अपना शरीर प्राप्त हो गया और उसको मुक्ति भी मिल गई। हमें पता नहीं कितने जन्म से, हम तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कब तक कृष्ण को प्राप्त करेंगे पता नहीं। तो किसी भी साधु या वैष्णव का अनायासी शब्द बोल देना किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये भी एक हमारे लिए लेसन है। तो कंस से टच में थे क्योंकि सारे असुरिक शक्ति कंस से टच में थे, क्योंकि खुद भी वो भी एक असुर था। तो असुर ने उसको बुलाया, बोला कि ये पूतना मर गई है, उसने सारे बच्चों को तो मार के खा गई, पता नहीं फिर भी कृष्ण जीवित है। ये इस बोलते नाम तो उनको भी पता नहीं था, बट लाइक इसका पुत्र अभी भी जीवित है तो पता नहीं, वो भविष्यवाणी गलत तो हो नहीं सकती, उसको ये तो पता था। अब तुम जाके खोजो और जैसे भी होता है, तुम्हें अगर पता लगे कोई खास विशेष बालक है उसको खत्म कर दो। तो आज माता ने उसको छकड़े के नीचे सुला दिया था, उसने उस छकड़े के अंदर अपनी स्थान प्राप्त कर लिया असुर ने। ओके, तो उत्कर्ष ने उस छकड़े में, दैट इज ऑन द कार्ट, ही टुक द, okay, and he could see Krishna is there, one child is there sitting, and he could be the same person who could kill him. So he then took the form of the, in the form of cart, उसने इस छकड़े को सोचा कि मैं इसको ऐसा फ्लैट दबा के इसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ। ऊपर मेरे बहुत सारा वजन पड़ा है, so much of earthen parts are lying on me, I will just fall flat on this boy and then just kill him. So what happens? Maya Yashoda actually left Krishna and went. Krishna also was waiting because he also knew now Shakatasur's time has come. So he just closed his eyes and so that mother could go. And then immediately mother has gone, he has opened his eyes. And all like, Priyal, Ritika and all, they were looking and they were like, playing with him. And then Utkarsh started to take his turn. And he started to come down on its own, he had uske chakke rehte hain, he had those wheels, so wheels started paying the way apart, and that that huge thing was coming down on Krishna. So Krishna was also waiting. So उसने देख लिया कि भाई असुर को मारना था, इसलिए भगवान ने नींद का बहाना किया, अपने खोल लिया, और असुर अब नीचे आ रहा है तो वेट किया, आने दो आने दो। और जैसे ही वो नीचे आते गए और जैसे ही उसने कृष्ण के पास आना शुरू किया, कृष्ण ने अपने पैर उठा दिए। चिल्ड्रन लिफ्ट देयर बोथ लेग्स, वी हैव सीन दिस राइट। सो चिल्ड्रन लिफ्ट देयर बोथ लेग्स, और कृष्ण ने अपने दोनों पैर उठाए, पैर के अंगूठे से उसको फिर एक झटका दिया, बस उसके अंगूठे से उसको एक झटका दिया, और वह पूरा का पूरा छकड़ा, इतना बड़ा छकड़ा था, कोई मामूली छकड़ा नहीं था, इट वाज अ ह्यूज कार्ट, along with that earthen pots, it flew in the sky kilometers far away. It flew into the sky kilometers far away, and with the loud sound, because when it flew, all the earthen pots fell hard, 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 and people were having their prasadam, and suddenly, what is this noise? What has come? Somebody has attacked Gokul, and people started panicking. Or फिर that उत्कर्ष का छकड़ा ऊपर तक गया, और फिर वापस उसी took all that energy, kinetic energy and potential energy, turn होके सीधा वापस आके नीचे जोर से धड़ाम उस लॉन में गिर के चूर 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 हो गया। ठीक है, उसका उद्धार हो गया, उसको वापस पुनः बॉडी मिल गई, उसने प्रणाम करके निकला, परंतु गोकुलवासी सारे आ गए अंदर से, such a big thing has happened. And mother, the moment she came out and she could see that this thing has broken into pieces, she again fell. मूर्छित होके गिर गई, आए ले मेरे काना को क्या हो गया, what happened to my Krishna? Because she left it there and there's nothing. Okay, but others could see, and somehow or the other they could remove the pieces and everything, and then they saw Krishna is happily playing below that. And they were astonished, like, yeah, like, तो immediately फिर वो सारा निकालते हैं कचरा वगैरह, और फिर सारा उसको गोद में उठाते हैं, और उसको फिर वही यशोदा मैया को उठाते रहे, नहीं कान्हा जीवित है, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो कान्हा भी, मैया भी उठती है,
फिर वही ब्राह्मण तो आए हुए होते हैं, फटाफट गौमूत्र आता है और गोबर आता है और उसका छिड़काव शुरू होता है। भाई हम जब बच्चे का नामकरण करते हैं हम ये सब मंत्र पढ़ते हैं, भाई ये गौमूत्र आपके मन से ना ऐसा छिड़कते, फिर बोलते ये हे वरुण, ये देव आपकी आंखों को ठीक रखे, ये देव आपके गालों को ठीक रखे, ये देव आपके पेट को ठीक रखे, ये देव नाभि को ठीक रखे, ऐसा करके आपका छिड़काव करते हैं जब बच्चों का स्नान का जो होता है ना फंक्शन, तो उसमें। तो इस प्रकार तो वापस वही इंडिकेशन दैट व्हाई वैदिक सिस्टम दीज यूज्ड टू प्ले लाइक एंटीसेप्टिक। गौमूत्र, गोबर, ये सब इनका छिड़काव करके किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इसलिए गौ सेवा और वैष्णव सेवा बहुत क्यों जरूरी है, क्योंकि वैष्णव को बुलाया और गायें घर में है ही है इनके। ओके, तो ये सेवा किस प्रकार काम आती है बच्चों को। तो नंद बाबा ने अन्य ब्रजवासी और जहाँ पे जो बच्चे ऐसे थे, सारे बालक थे, कि रितिका को और प्रियल को पूछा भी ये क्या कैसे हुआ। तो रितिका और प्रियल ने बोला नहीं, कृष्ण ने अपने पैर उठाए और बोले वो ऊपर चला गया। बोले हम भी देख के सरप्राइज हुए कृष्ण ने पैर से कैसे उठा के मारा होगा, इतना फास्ट। बच्चे उनको अभी समझता नहीं होगा, ऐसी बालक बुद्धि हम बोलते हैं ना, अभी बालक बुद्धि पर ये वाकई में बच्चे जो बुद्धिमान थे, बालक बुद्धि उसको बोला जाता है जिसको बुद्धि नहीं, ठीक है। तो ये बच्चे की बालक है तो उनकी बुद्धि थोड़ा ये विकसित नहीं है, हो सकता है ये ज्यादा जानते नहीं है। आचार्यगण कहते हैं बालकों में कि बालकों में बुद्धि होती है और कुछ बूढ़ों से ज्यादा भी होती है, और कुछ बूढ़ों से ज्यादा भी होती है। क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि वे बड़े निष्कपट होते हैं। उस समय उनको किसी को नुकसान पहुंचाना ऐसा उनके मन में भाव कभी भी नहीं रहता है। बड़े निष्कपट होते हैं, बड़े ऐसा ना लाइक एक्सप्लोरिंग नेचर होता है। वो एक्सप्लोरिंग नेचर को हम बोल सकते हैं शरारती है, बट लाइक वो अपने जो है सो अपने इसमें मस्त रहते हैं। तो वो निष्कपट होते हैं और मन के बड़े सच्चे होते हैं, इसलिए बच्चे मन के सच्चे है ना, सारी जग के आंखों के तारे, कहते क्या क्या गाने बने हैं। तो बड़े मन के सच्चे होते हैं, तो सोचते तो इनको अनुभव नहीं होगा, परंतु वे ज्यादा अनुभवी होते हैं। स्पेशली आज के डेट में आप देख लो, आप टैब दे दो, फोन दे दो, आपको जितने फंक्शन पता नहीं होंगे आपके बच्चों को पता होंगे। राइट प्रभु, योर चिल्ड्रन विल नो मच बेटर टू हैंडल द कंप्यूटर्स देन so they have their own so this thing, only thing is we don't recognize them. So बच्चों का भी अपना IQ लेवल के हिसाब से उनका ज्ञान होता है। तो कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई भक्ति में बड़ा होता है, उनको ज्ञान होता है, परंतु खाली समझने वाली बात होती है। इसीलिए 5 साल की उम्र में ही उनको भक्ति में, ज्ञान में लगा देना चाहिए। तो जो जिस फील्ड में आगे है उस फील्ड में वो आगे बढ़ जाता है। दैट विल बी हेल्पफुल आगे चल के। तो इन चीज से बाकी अनजान थे। तो कृष्ण सभी लीलाएं जो करते हैं अपने सभी सखा बच्चों के साथ में ही करते हैं। सारे बच्चे थे परंतु उनको कोई ये नहीं पहचान सका। आगे चल के ब्रह्म विमोहन लीला होगी, तब तो लाइक सारे बच्चे घर पे आके बोलते हैं कि भाई जब वापस उनके नॉर्मल में आ जाता है ना बच्चे, जब 1 साल बाद में ब्रह्म विमोहन लीला, व्हेन ऑल द चिल्ड्रन कम बैक टू लाइफ आफ्टर 1 year, that time they say one 4-headed person had come and he was praying to Krishna. He was circumambulating them, he was making them abhishek, he was putting water, this Govind yeah. तो वहां पे अनेक पॉन्ड खड़े, लाइक गोवर्धन पर्वत पे अनेक ये बने हैं, क्या बोलते हैं, सरोवर बने हुए हैं, है ना। तो उन कुंडों के अंदर मतलब वो आके घर पे बोलते हैं बच्चे, but then they say no, who is the 4-headed person, how can Brahma come here? No, these persons are still very small, they will not understand. So but they understand everything, only thing is they may not understand it in your common sense, but they understand from their point of view that all these things have been done by Krishna. So इस प्रकार ये अद्भुत लीला हुई। तो अब इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? एक तो कुछ सीख तो मैंने बोली है, बट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो लीला किसको रिप्रेजेंट करती है? लास्ट टाइम भी हमने सीख ली थी कि भाई ये लीला किसको, पूतना के अंदर हमने क्या बोला था कि आजकल भी हमको ऐसे धोखा देने वाले लोग मिलते हैं जो अपना भेष बदल कर आते हैं ना, क्योंकि पूतना असुर थी और वो आई थी गोपी बन के। तो आज ये शकटासुर क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है? पावर।
misuse of कोई power, qualities आपके अंदर हो उसको misuse ना करें। misuse of power ना करें। कोई बात अपने भगवत गीता में हम अभी तक करते आ रहे थे, तो क्या है वो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, काम, क्रोध है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये 6 प्रकार के शत्रु है ना, तो ये उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये लीला में देखा था आपने, कृष्ण नीचे थे और शकट ऊपर था, है ना, शक्टासुर ऊपर था, क्योंकि वो शकट में उसने अपना स्थान प्राप्त किया था, इसलिए उसका नाम शक्टासुर हो गया। तो इसी तरह हमारा शरीर भी नीचे है और हमारा ये मस्तिष्क जो है सो उसके अंदर ये असुर बैठा हुआ है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य 6 प्रकार के असुर उसके अंदर है। तो ये हमारे भी दिमाग के अंदर ये 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं। तो उनको तो इसको शकटासुर बोलते हैं हम। ये हमारा शकट है, बॉडी है, और उसके अंदर ये दिमाग है जो अपनी पुरानी आशाएं आकांक्षाएं लेकर आता है। ये शकटासुर के रूप में अपने दिमाग में बैठे है, और उसके 6 अंग है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। सो जब 108 दिन के कृष्ण ने शकटासुर का वध करके उसका चकनाचूर कर दिया था, तो हमें भी मीन्स वो भी दिखाई नहीं देता, और ये अपना हमारा काम क्रोध लोभ मोह ये भी हमें दिखाई नहीं देता है ना, उसका शरीर दिखाई नहीं देता था और हमें भी ये सब दिखाई नहीं देता है। तो ये पर उसकी एक क्वालिटीज की पहचान होती है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्य, क्योंकि वो उसका शरीर नहीं था, उसने जो शरीर लिया उससे रूप से पता चलता है ये शकटासुर है उसमें। तो हमारे अंदर भी ये काम क्रोध लोभ मोह ये दिखाई नहीं देते, परंतु उसके क्वालिटीज से आचरण से हमें पता चल जाता है। तो इनको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये 108 माला वाली हरे कृष्ण महामंत्र करके 108 माला वाली से इसके काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को खत्म करना चाहिए। जब आप करने लगोगे, इसलिए माला दी जाती है आप लोगों को, क्योंकि एक तो होता है हाथों में करना, एक अलग चीज है, परंतु जब आप माला को आप ऐसा करके निकालते हो तो उससे ऑटोमेटिकली आपके मन में जो भी भरे है ना, ये तो लाइव एग्जांपल्स है हमारे पास, तो कौन कब खाना छोड़ दिया पीना छोड़ दिया पता ही नहीं चलेगा। वैसा ये काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य कब निकल जाएंगे पता नहीं रहता है, आखिरी तक रहता है कुछ तो, बट लाइक बहुत कुछ कम हो जाता है, क्योंकि आप झुकना सीख जाते हो, किसी का प्रणाम करना सीख जाते हो, अपने लाइक जैसे प्रोग्राम होता है आप लोग अपने पैसा छोड़ना शुरू कर देते हो, इन द सेंस दान देना शुरू कर देते हो, घर में से प्रसाद बना के लाते हो, अपनी सैलरी का सही बेस्ट यूज करते हो, ये सारी चीजें उसी को रिप्रेजेंट करती है। परंतु ये 108 माला यदि हम करते हैं और हरि नाम का लेते हैं, तो हरि नाम का सारा लेते हैं, नाम चिंतामणि यस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो, है ना। तो ये कृष्ण का, और कृष्ण का नाम अभिन्न है, हम कृष्ण से एसोसिएट हो नहीं सकते आज के डेट में, तो उनके नाम से एसोसिएट हो जाते हैं। सो वंस वी कैन नॉट एसोसिएट आवरसेल्व्स विद कृष्णा इन टुडेज वर्ल्ड, बट वी कैन एसोसिएट थ्रू द नाम, एंड दैट इज हाउ व्हेन वी डू कीर्तन वी get out of all this mind के अंदर। So this Manohridhi today, Parikshit Maharaj was asking, like, say about the katha which is good, soothing to the ears as well as to the mind, because mind has the storehouse of all this काम क्रोध लोभ मोह, and it stays there and it gets its work done through your senses. So that is where इस mind को ठीक करना चाहिए, that is the reason ये कथा जरूर कृष्ण की सुननी चाहिए और जप जरूर करना चाहिए, ये lesson है। Okay, हरि बोल। For 10 beads and bead bags. So if हाँ। somebody wants, you can give it. अभी तो है किसके पास, किसी के पास बीट बैग्स नहीं है? हाँ, प्रभु को भी आज दे दिए थे मैंने, वो दे दिए थे, है रखो रखो, चाहिए रखने का। I mean, if anybody wants, please tell Prabhu and you can. हाँ give वो it today बीट बैग जिनके पास नहीं है आप मेरे से ले लेना, and start chanting. सैक चैंटिंग एक राउंड तक। भक्ति विनोद ठाकुर सारांश में शक्तासुर के क्या बोलते हैं कि हमारी सारी गलत आदतें को कंपेयर करते हैं शक्तासुर को, यही जो काम क्रोध लोभ मैंने बोला। तो हमारा शरीर रूपी छकड़ा बहुत सी गलत आदतों आलस एवं ईर्ष्या से भरा होता है, और ये काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य असुर रूपी बनकर इसके ऊपर विराजमान करते हैं। तो इसीलिए हरिनाम जप का सहारा लेकर हमें इसको अंत करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु ये जो 1 to 108 है ना माला का जो बीट से, तो उसका कुछ है ऐसा कि अभी मैंने 27 नक्षत्र बताए थे, नहीं नक्षत्र नहीं, जो 27 नक्षत्र बताए थे जो सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस 27 नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, तो 27 into 4 108 होता है। ये पूरा संपूर्ण
सर्कल ऊपर जो आकाश, हमारे ऊपर जो आकाश है उसको रिप्रेजेंट करता है। ईच 30 डिग्रीज का 12 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। तो यदि हम एक राउंड भी करते हैं तो ये 360 डिग्री इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाए, ये 108 माला के थ्रू 360 डिग्रीज रिप्रेजेंट हो सकता है। ऐसा कुछ है कि 1 to 10 तक 11 तक इनको जाता है, फिर 11 to 60 तक, ऐसा कुछ है? हरि नाम के अंदर किसी को जाने का है नहीं, सब आपको ही आता है। फिर ये सब हमें अलग कोई नहीं, वो अलग बात है। कोई आप कोई इच्छा से कोई प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र जाप करते हो 1 से 10, 15 से 20, तो वो काम कर्म कांड के अंदर बहुत कुछ होता है। बट ये कर्म कांड नहीं करवा रहे हैं हम, आपको हरिनाम करवा रहे हैं। तो हरिनाम के अंदर आपको ही फायदा होने वाला है और किसी के नहीं। आपका हरिनाम आपको फायदा होने वाला है। आप जोर से करोगे, कीर्तन करोगे तो दूसरों को फायदा करोगे। मैंने अभी तो देवाशीष प्रभु जी, आपका तो अभी भी चांस है, आप सोच रहे हैं मेरे लिए, आप छोड़ो। Yes. No, everyone, human. That is Prakriti. That is what Prakriti, no, Prabhu. That is where, that is, see. No, reason, because there's 4 things, no, there's ये क्या बोलते हैं, नहीं ये जानवर इमीडिएटली खड़े होते हैं, whereas ह्यूमन बींग्स को समय लगता है। तो ये अपने ये जो है ना, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऊपर ये क्या बोलते हैं, अपने 4 है ना चीज, क्या बोलते हैं, जन्म, नहीं क्या बोलते हैं, नहीं 4 पुरुषार्थ, क्या नाम इसका, धर्म अर्थ काम मोक्ष ना। हाँ नहीं ये नहीं क्या 4 ये जो चीजें, 4 चीजें हम इंसान भी करते हैं, पशु भी करते हैं, एक खाली हम धर्म करते हैं। तो पशु भी समान। हाँ तो ये क्या बोलते हैं, नहीं ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ओके, सो एनिमल्स also have to defend themselves because they are in such an vulnerable environment. So their prakriti has been made in such a way that they have to immediately get up and run. No, curse no. There's 84 lakh yonis prepared in that way. Like for giraffe, the calf bone falls from the top, and if it doesn't start moving faster, the mother giraffe kicks him harder, very hard. ये मटेरियल वर्ल्ड में आ गया, ले लात खा। हम लोग पुचकारते हैं, उधर वो लात मारते हैं, लात मारते जल्दी से उठ, नहीं तो अभी शेर आ जाएगा, खा जाएगा तेरे को। तो ये लाइफ का लेसन है। तो ह्यूमन बींग्स तो क्या होता है कि उसको पुचकारने वाले बहुत है, वो माया में फंस जाता है, अपने रिलेटिव्स को देखता है, करता है ये वो, और वो फंस जाता है। वैसे जानवर के अंदर पहले आते ही लात खाते हैं और वो चलना सीख जाते हैं। हम लात नहीं मार सकते, हमारा प्रकृति भी वैसी बनी है। कई बार तो देखो ना, आजकल फॉरेन में तो आप देखोगे स्विमिंग पूल के अंदर जन्म देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं बचपन में ही स्विमिंग सीख लेंगे। ऐसे भी बर्थ देने वाले लोग हैं कि दे गिव बर्थ इन द स्विमिंग पूल। लोग कैसे, ठीक है, बट इट्स ओके। हम तो वही लेंगे जो शास्त्र बताता है। हाँ नहीं, रूप का बनना क्या, उसका रूप वापस मिल गया, उत्कच का शरीर मिल गया, फिर बाद में वो जो है सो भगवान की सेवा में था, उसका भी मोक्ष मिल गया, उसको भी उनके सेवा में वहां लगा अपने वैकुंठ में। इसलिए ना ये जो जगन्नाथपुरी का इसलिए एग्जाम्पल लिया, क्योंकि वहां पे देखो भगवान का इतना शरीर उनको वो लोग बनाते हैं, आप देखोगे एकदम सुंदर। ये सलमान खान भी कुछ नहीं है उनके सामने, दे लुक मच बेटर। और उनके हाथ से भी इस बार बलभद्र जी का स्लिप होना हुआ। तो सो दैट्स अ होल थिंग, ये थिंग इट्स ओके। नहीं जो अभिषेक जो दिया था ना उसी, नहीं स्लिप भी होगा प्रभु, पीपल आर थिंग्स आर वेरी वाटर वगैरह सब आजकल स्लिप भी रहता, because they have to Cheto that what Chaitanya Mahaprabhu had given, that class I had shared in the group, what Chaitanya Mahaprabhu had done for the margin, no, the Gundicha margin. I took a class on that, I shared in the group once. So Gundicha margin should happen very nicely. So if you clean the temple very nicely, your heart will also get cleaned very nicely, and Lord will remain in your heart. He will not fall down. If margin is not happening properly, Gundicha is not being cleaned properly, then all these things are possible.
I gave because on Gundicha Marjan Day only I put it in the group. How many of you have listened to it? I don't know, but Bahrain का प्रोग्राम हाँ बहरीन का क्लास था, यस एग्जैक्टली बहरीन का क्लास था। मैंने बोला आज बुला के हम ये ले नहीं सकते, इसलिए मैंने ग्रुप में डाल दिया था। मैंने बोला ये मेरा पहले लिया हुआ क्लास है गुंडीचा मार्जिन के ऊपर। उस दिन हम लोगों के पूरा फैमिली उस ग्रुप में हमारा पूरा फैमिली का कीर्तन भी था एंड एवरीथिंग वाज देयर। हरि बोल, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।